So in the previous meeting, we have discussed about the communications and the components of computer networks. We have seen that there will be the sender, receiver, message, and communication channels that are the components of computer network. Okay, we have seen that there are two types of communication channel. First one is the wired, and the second one is the wireless. We have also studied about the host and server. Host and server both are the nodes of network, but server is responsible for making the task. ठीक है, तो होस्ट और सर्वर दोनों क्या थे, नोड्स थे, लेकिन जो सर्वर था वो नेटवर्किंग टास्क जो भी करने होते थे उसको करता था. तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था. सो देयर इज अ वन मोर थिंग which is the transmission mode in networking. देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसमिशन मोड. यानी जो भी हम नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, किस चीज का, रिसोर्सेज का, तो आखिर उसका मोड क्या होने वाला है. ठीक है, तो वो मोड हम इसमें डिस्कस करते हैं. ट्रांसमिशन मोड मींस ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस. इट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मोड. सो इसको और किस नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेशन मोड के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सो बेसिकली ट्रांसमिशन मोड आर थ्री टाइप: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. ओके, चलिए देखते हैं कि सिंप्लेक्स मोड क्या है. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सिंप्लेक्स मोड होता है डायरेक्शन एट द वन एंड ओनली. ठीक है, rather than to just read this definition, you just look to the picture. Here is a sender, there is a receiver, which means the device 1 and the device 2. But device 1 is only having the communication to device 2. If device 2 wants to communicate to device 1, it is not possible in the simplex mode. Means simplex mode में केवल device 2 जो है as a receiver का ही काम करेगी. ठीक है, सेंडर का काम नहीं करेगी. तो ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन मोड जिसमें केवल एक सेंडर और एक रिसीवर हो, यानी जो मैसेज का या रिसोर्सेज का जो ट्रांसमिशन है केवल एक ही फ्लो में हो, एक ही दिशा में हो, फ्रॉम ओनली वन डिवाइस, which is known the simplex mode. Just like I have taken the example of very basic example, which is the keyboard and monitor. Okay, keyboard में जब आप कुछ एंट्रीज करेंगे तो आप कीबोर्ड के द्वारा मॉनिटर को एंट्रीज देते हैं, बट जो मॉनिटर की एंट्रीज है वो कीबोर्ड के अंदर नहीं आ सकती. इज दैट पॉसिबल? No. So this is a kind of simplex mode. Okay, so whatever and whenever you write the simplex mode, you have to draw the sketch diagram of it. Okay, and second one is the half duplex mode. Half duplex mode means in half duplex mode each station can both transmit and receive, but only one at a time. This is very important students. देखिए हाफ डुप्लेक्स मोड का मीनिंग क्या है कि आप दोनों तरफ से सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बट अगर ए डिवाइस सेंड कर रहा है तो बी केवल रिसीव करेगा सेम टाइम में, यानी साइमल्टेनियसली बी सेंड नहीं कर सकता है. Okay, once again I am repeating, here you can see in the picture also that if A is sending, then the B will be receiver, and if B is sending, then the A will be receiver. Okay, so just like the example of walkie talkie. Walkie talkie में भी क्या होता है कि एक बार जब आप सुन रहे हैं तो आप केवल सुन ही रहे हैं, ठीक है, आप उस टाइम बोल नहीं सकते, और जब आप बोल रहे हैं तो आपको केवल बोलना होगा, आप उस टाइम सुन नहीं सकते. So this is the example of half duplex mode. Okay, I hope you are studying. Next is full duplex mode. Full duplex mode में क्या होता है कि एक ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, या आप एग्जांपल ले लीजिए वंस अगेन व्हाट्सएप का, ईमेल का, या जो भी है ना, वहां से आप क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो डेटा का वो बोथ वे में हो सकता है. ठीक है, साइमल्टेनियसली रूप से अगर कोई जो मोड है जो ट्रांसमिशन करता है डेटा का, तो उसे क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड. यानी कि जो सेंडर रिसीवर भी बन सकता है और रिसीवर सेंडर भी बन सकता है एट द सेम टाइम. So far we have discussed about the transmission mode. Now we will look about the transmission medium. A transmission medium refers to the channel of transmission through which data can be transmitted. Yes, which channel we are going to use to communicate with the network. Okay, if I want to share some resources, or if I want to communicate with the devices on the network, which medium I am using, it is all about the transmission medium. It can be the guided medium or it can be the unguided medium. Students, don't be confused about the guided and unguided. Guided means the wired and unguided means the wireless. Okay, a medium is characterized by its bandwidth. So there is a very important term comes bandwidth. What is bandwidth? Bandwidth means amount of data that has to be transmit in a given time. ठीक है, कोई एक given time है अपने को, उसमें अपन कितना डेटा एक टाइम पे दे सकते हैं, आखिर आप इसको एज अ मेजरमेंट ले सकते हैं. ठीक है,
कि आप स्पीड बोलते हैं ना कि इतने पर स्पीड पे इतना डेटा मेरा डाउनलोड हो गया या अपलोड हो गया, तो वो भी किसके थ्रू होता है, बैंडविड्थ के थ्रू होता है। ठीक है, तो मीडियम हम किसके द्वारा मतलब हम कैरेक्टराइज करते हैं, बैंडविड्थ के द्वारा। ठीक है, कॉमन मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजर्स इंक्लूड्स डायल अप विद अ कंप्यूटर मोडेम। तो जो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो जनरली हम किससे कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन सर्किट्स हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ केबल्स की बात की गई है, कुछ वायर्स की बात की गई है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर coaxial cable, fiber optics, copper wires. So these are kind of wires which we use in the transmission medium. And there is Wi-Fi satellite, cellular telephone technology which we are using is the 3G and 4G, and 5G is on the way. So these are the some kind of internet access methods which we are using in the transmission medium. So there is important thing which is that how many types of transmission medium. There are basically two types of transmission medium. First one is the guided medium and the second is unguided. Guided means the physical conductors such as fibers, coaxial cable, fiber optics, twist pair cables. आपके जो घरों में तारे होते हैं ना, twisted pair cables हो गई, coaxial cables हो गई, जिसपे आपके कॉपर लगा हुआ होता है, तो ये सब क्या है, गाइडेड मीडियम है। क्यों? क्योंकि हम इन वायर्स का यूज करके हमारे जो नेटवर्क है उसको यूज करते हैं। सो दिस इज नोन एज द गाइडेड और वी कैन से द वायर्ड मीडियम। ओके, and jumping to the next thing is the unguided medium. Unguided means wireless medium such as the microwave. Don't refer it to the kitchen's microwave. Micro means होता है बहुत छोटा और वेव वाली होती है जो हमारे रेडियो वेव्स होती है ना, उसे बोलते हैं। तो माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड, ये सब सैटेलाइट और वायरलेस के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, so this is about the transmission medium. If anyone has any doubt, please ask to me. So here you can see in the picture that is kind of blur picture. There are two types of communication medium, and here are the some other classifications. Okay, now we will look about the network devices. Okay, so we have studied about the transmission mode, transmission medium, the components of computer network. Now we have to just take the basic ideas of devices so that we can understand which device is better or which device is being used in the networking system. So हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक हम कोई डिवाइस यूज ना करें, जो कि हमने देखा था कम्युनिकेशन चैनल के रूप में, है ना। तो कम्युनिकेशन चैनल हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, नेटवर्क डिवाइसेस, चाहे वो आपके रिपीटर हो, ब्रिजेस हो, हब्स हो, गेटवेज हो, तो ये सब क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस है। तो फर्स्ट जो है वो नेटवर्क डिवाइस है रिपीटर। ये काफी पुराना है, ठीक है, आजकल के टाइम में हम इसको बहुत ही कम यूज करते हैं। सो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम पहले के टाइम में जब नेटवर्किंग करते थे या होता था, इवन आई डिडंट यूज द रिपीटर, तो क्या होता था कि वीक सिग्नल हो जाते थे बिकॉज द डिस्टेंस जैसे ही दूर होता था सिग्नल्स क्या होते थे, वीक सिग्नल होने से जो मैसेजेस हैं, उसका जो कम्युनिकेशन हमने करना चाहा था वो क्या है, वीक होने लग जाते थे। और उसके बाद जो है, जो मैंने डेटा भेजा है वो एग्जैक्ट नहीं आता था। तो उससे बचने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, रिपीटर। तो रिपीटर क्या करेगा, वीकेंड जो सिग्नल है उनको वापस से रीस्टोर करके रीजनरेट करता है और फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेशन चैनल पे या नेटवर्क पे वापस से ट्रांसफर करता है। ओके, तो ये है रिपीटर। ये क्या करता है, रीशेप करता है, एम्पलीफाइज करता है, यानी कि उसके जो उसका लेवल है उसको बढ़ा करके फिर उसको नेटवर्क पे अपलोड करता है। सो दिस इज अबाउट द रिपीटर। रिपीटर नाम से पता चल रहा है रिपीट करता है। ओके, सो नरेश जाट इज आस्किंग समथिंग। सर ये ना एक बार, yes, so the next device is hub। ठीक है, unlike a repeater which connects two cables, a hub connects several lines। ठीक है, देखिए अगर हमने रिपीटर्स की बात की तो रिपीटर्स केवल क्या करता था कि वीक जो सिग्नल्स थे उसको रिपीट करता था, रीजनरेट करता था थ्रू द केबल्स। बट हब जो है वो सेवरल लाइंस को कंसिस्ट कर सकता था, यानी कि एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते थे उसमें, और उसके द्वारा वो सिंगल केबल का यूज करते हुए डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि ये आप पिक्चर में देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप पीसी हैं, दो पीसी भी कनेक्ट है सिंगल हब से, लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो हब है वो बेटर ट्रीट किया गया रिपीटर से। ठीक है, यहाँ पर हम एक सिंगल केबल का यूज करते हुए मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट होके अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये रहा हमारा सिंगल केबल, यहाँ पर पीछे लगे होते हैं
पोर्ट्स और उसके द्वारा हमने इसको कनेक्ट कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हब है, ब्रिजेस हैं, गेटवे है, ये दिखने में आपको एक समान ही लगेंगे और काम भी एक तरीके से ही करते हैं, बस थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं इन सभी में, ठीक है। हब्स भी क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। ब्रिजेस भी अपने साथ मल्टीपल डिवाइसेस को ही कनेक्ट करेगा, बस बहुत ही छोटे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम जंप करेंगे ब्रिज पे। अ ब्रिज इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस, ठीक है। ब्रिज में भी मल्टी पोर्ट होते हैं, बट ब्रिज जो है वो लैन कनेक्शंस को, यानी जो छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे रूम में मैंने अपने लैपटॉप में लैपटॉप को भी कनेक्ट कर रखा है, फिर इंटरनेट को कनेक्ट कर रखा है और प्रिंटर को भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये छोटा सा एक लैन बन गया, यानी लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो छोटे छोटे जो लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ कंबाइन करने का काम कौन करता है, ब्रिज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ब्रिज यानी इंटरमीडिएटरी काम करेगा ये, ठीक है। इंटरमीडिएशंस करेगा, इंटरफेयर करता है, और जो दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो सेम सेगमेंट्स हैं, उनको जोड़ता है। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक सेगमेंट 1 है, ए एंड बी, ठीक है, ये सेगमेंट 1 के अंदर है। सी एंड डी ये सेगमेंट 2 के अंदर है, यानी ये दोनों एक तरीके के नेटवर्क हैं, ये दोनों एक तरीके के नेटवर्क हैं। या आप ये मान सकते हैं कि सेगमेंट 1 जो है वो एक छोटा सा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और सेगमेंट 2 है वो एक छोटा लैन है। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, मान लीजिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, ब्रिज का। क्यों? बिकॉज इट हैज द मल्टीपल पोर्ट्स और इट कैन कनेक्ट द स्मॉल लैन्स। टेकिंग द एग्जांपल, सपोजिंगली दैट प्राइमरी सेक्शन हो गया ये, ठीक है, और ये मिडिल सेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हूं, तो मुझे तो दोनों का डेटा चाहिए, या दोनों का डेटा ट्रांसफर चाहिए, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इस सेगमेंट को भी मैं इसमें कनेक्ट कर लूंगा और इस सेगमेंट को भी। तो ये होता है ब्रिजेस का काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउटर। यस, जो सबसे ज्यादा हम अभी यूज कर रहे हैं, राउटर। राउटर क्या होता है, ये मल्टीपोर्ट होता है। मल्टीपोर्ट तो हुआ, बट ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी कैसे? फायरवॉल के द्वारा। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन है जिसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, ठीक है। इंटरनेट कई मैलिशियस फाइल्स को भी अपने साथ कनेक्ट करता है, बट राउटर प्रोवाइड्स अस व्हाट? फायरवॉल। फायरवॉल मींस इट विल स्कैन द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द इंटरनेट। सो लेट्स स्टडी अबाउट द राउटर। राउटर इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस लैन और वैन। देखिए, अभी हमने बात की थी ब्रिजेस की। ब्रिजेस क्या कर रहा था? केवल लैन को कनेक्ट कर रहा था। राउटर क्या है? ये मल्टीपल लैन्स को भी और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। A router transmits data from incoming network to another network, यानी कि एक तरफ एक जो नेटवर्क है वो दूसरे नेटवर्क को क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। A router maintains a routing table. Yes, this is very important thing about router. ठीक है, राउटर में हमने देखा कि बहुत सारे लैन्स या वैन्स जुड़ सकते हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे से जो नेटवर्क्स हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब राउटर क्या करेगा कि उसमें एक प्रायोरिटी टेबल क्रिएट करेगा खुद ही, कि कौन से लैन को या कौन से वैन को या कौन से सेगमेंट को मुझे पहले डेस्टिनेशन एड्रेस देना है, यानी पहले कम्युनिकेट करवाना है। सपोजिंगली जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, अब आपके पास, मेरे पास क्या है, आर्ट्स का भी स्टूडेंट है, कॉमर्स का भी है और साइंस का भी है, बट मैं यहाँ पर कोई टेबल मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन राउटर टेबल मेंटेन करेगा कि पहले मैं साइंस वाले को नेटवर्क एक्सेस दूंगा, या पहले आर्ट्स को दूंगा, या कॉमर्स को दूंगा। So this is the about router. अच्छा, राउटर ऐसा क्यों करता है? Because it has the multiple connections over a time. Please do not do any kind of annotations. Okay? Yes. So I hope you have understood about the routers. Yes. There is one another device which is the switch. One more thing I am repeating again, students, that do not be confused. Just write the similar or we can say the so एकदम सेम टू सेम ही है ज्यादातर की थ्योरीज, आपको उन्हीं को लिखना है। बस जो मेन चीजें हैं, आपको जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आपको मेंशन करनी है, आप जब भी टेस्ट देंगे या जब भी आप अपने मेन एग्जाम्स को लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो रिपीटर्स था वो वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करके वापस से ट्रांसफर करता था। हब्स क्या है? हब्स मल्टीपल पोर्ट्स को यूज करता है, सिंगल केबल को यूज करता है, और वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर हमने हब के बाद क्या देखा? हमने हब के बाद ब्रिजेस को देखा। ब्रिज क्या करता है? डिफरेंट सेगमेंट्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। फिर हमने किसकी बात की? राउटर की। राउटर भी क्या होता है? मल्टीपल पोर्ट्स ही होता है, बट ये लैन और वैन दोनों को कनेक्ट कर सकता है। साथ ही हमें फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है, और ये एक टेबल बना के रखता है कि किसको नेटवर्क कनेक्शन देना है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज
बताइए। Now we will do the switch. Switches क्या होता है? देखो, switch और bridge sometimes works or you can think that they will work similarly, but they do not. देखो, bridges ने क्या किया? Which connect two or more LAN segments. Switches are used to connect individual nodes. Mark my point, students. Individual nodes. ठीक है? जैसे कि अगर आप लाल पब्लिक स्कूल में जब भी आप आएंगे यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो हमने अभी नया नेटवर्क कनेक्शन लिया है उसमें हमने स्विचेस यूज किया है। स्विचेस क्या आपको फैसिलिटी देता है कि ये मल्टीपल पोर्ट्स तो है, ये लैन और वैन को भी कनेक्ट करेगा, यानी डिफरेंट सेगमेंट्स को कनेक्ट करेगा, बट थ्रू वन डिवाइस। मार्क माय पॉइंट, थ्रू वन डिवाइस। अब जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ बेसमेंट में, ठीक है, अब आपका एक मिडिल लेवल भी है, फिर प्राइमरी टायर भी है, फिर सीनियर सेकेंडरी टायर भी है, तो तीनों हमने जो है वो आप कह सकते हैं कि सेगमेंट्स में, तीनों पार्ट्स में हमने नेटवर्क कनेक्शन लिया है। लेकिन अब मुझे अगर मान लो सभी को कनेक्ट करना है केवल एक सिंगल कनेक्शन से, तो मैंने क्या कर रखा है, स्विचेस का यूज कर रखा है हम लोगों ने। स्विचेस का यूज करने से क्या होता है कि आप सिंगल केबल उससे जोड़िए, आप वो केबल अगर आप अपने पीसी से अटैच करते हैं तो आपको नेटवर्क कनेक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए वापस मैं बताता हूँ। एक स्विच हमने इंस्टॉल कर लिया हमारे यहाँ पर स्कूल में, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बेसमेंट में हूँ और मैं नर्सरी की क्लास में क्लास ले रहा हूँ, वहाँ एक पीसी है। अब मुझे उस पीसी में मुझे नेटवर्क कनेक्शन देना है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, एक लैन वायर दी जाती है, उस लैन वायर को मैं अपने पीसी से कनेक्ट करूंगा और वो डायरेक्ट मुझे इंटरनेट कनेक्शन दे देगा। तो यहाँ पर मैं यूज क्या कर रहा हूँ, सिंगल केबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसी सिंगल केबल से मैं पूरी स्कूल या पूरे बिल्डिंग के नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही डिवाइस है, एक ही नेटवर्क स्विच है, वहां से आप पीसी को भी कनेक्ट कर रखा है, वहां पर आपने प्रिंटर को भी कनेक्ट कर रखा है, और भी अगर आपको मॉडेम्स यूज करने हैं, ये मॉडेम्स यूज करने पड़ते हैं अगर आप एक बेसमेंट से दूसरे लेवल पर जाएंगे, ठीक है। और ये मेरा मेन सर्वर है, ठीक है। ये मेन सर्वर आपको आईएसपी के द्वारा जुड़ाना पड़ता है, जैसे हमने बीएसएनएल का कनेक्शन ले रखा है। सो दिस इज द स्विच, इसीलिए मैंने इसको रियल लाइफ एग्जांपल दिया रादर देन मैं केवल थ्योरेटिकल होने से कोई मतलब नहीं होता, आपको बस रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा स्विच, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेटवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है नेटवर्क की गेटवे। क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम इंटरनेट अगर कनेक्शन यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। कल हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द नेटवर्क। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। अ गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज। सपोजिंगली देखिए क्या होता है, अगर गेटवे को यूज करने का मीनिंग क्या हुआ। आज मान लीजिए कि मैं यूज कर रहा हूँ HTTPS, जो ज्यादा हार्ड है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और मान लीजिए और कोई वेबसाइट है वो केवल HTTP यूज कर रही है, और मान लीजिए आप में से किसी 11th-12th के बच्चों ने कोई वेबसाइट क्रिएट की और उसको लॉन्च कर दिया, तो आपको इतना प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं था, तो आपने कोई प्रोटोकॉल ही यूज नहीं किया, या आपने बहुत ही वीक प्रोटोकॉल यूज किया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोटोकॉल्स में डिफरेंट है ना, प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बट अगर मुझे नेटवर्क यूज करना है और अगर मैंने गेटवे यूज कर रखा है, तो ये मुझे सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करने का अलाउंस करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कौन हैंडल कर सकता है, गेटवे, ठीक है। डेटा कमिंग फ्रॉम वन नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑन वन प्रोटोकॉल इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दूसरे प्रोटोकॉल से मेरे पास कोई चीजें आ रही हैं जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, वो मेरे पीसी पे सपोर्ट नहीं करता, तो गेटवे क्या करेगा, उसको सपोर्टिंग फाइल में कन्वर्ट करेगा और मुझे उस नेटवर्क का एक्सेस देगा, ठीक है। आया समझ में, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट किस में किया जाता है, गेटवे में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करके हमें जो आउटगोइंग नेटवर्क कौन प्रोवाइड करेगा, गेटवे। So this is how we have completed about the network devices and the transmission medium. Now you can ask your queries one by one by raising your hands, okay?